Hello students, welcome back to our channel. As you all know that in last class we have completed the exercise part of chapter Constitution by and half, and today we are going to start the same NCERT solution or NCERT exercise for chapter second, that is rights in Indian Constitution. Let us start today. Question number 1. It is asking from you, write true or false against each of the statement. It means here are some statements which are given to you, and on the behalf of the statements you will have to answer whether it is correct or incorrect, whether it is true or false. So first statement is, a Bill of Rights lays down the rights enjoyed by people of a country. In the chapter we have studied Bill of Rights, है ना? And what we have studied in that Bill of Rights, it provides a list of the rights which will be given by the constitution of any particular country. So basically what is the Bill of Rights? It lays down the rights. It means it is having the list of those rights which can be enjoyed by the people of a country. So this is completely true. Second statement, a Bill of Rights protects the liberties of an individual. अब देखो हमने क्या पढ़ा, बिल ऑफ राइट्स क्या होते हैं. बेसिकली इसमें क्या चीजें मेंशन होती है, किसी भी कंट्री के जो राइट्स होते हैं उनकी लिस्ट होती है बिल ऑफ राइट्स में. अगर राइट्स की लिस्ट है तो इट मींस राइट्स है, तो कहीं ना कहीं आपको लिबर्टी भी वहीं से मिलेगी, राइट? तो कहीं ना कहीं आप इसको कनेक्ट करोगे दैट यस, अ बिल ऑफ राइट प्रोटेक्ट्स द लिबर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल. बाय बिकॉज बिल ऑफ राइट is having the list of those rights which will be given by the constitution, है ना? So this bill of right protects the liberties of an individual also. Got it? Third, every country of the world has a bill of rights. अब देखो थर्ड स्टेटमेंट में आपसे पूछा गया है, एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज अ बिल ऑफ राइट्स. क्या वर्ल्ड में जितनी भी सारी कंट्रीज है सबके पास बिल ऑफ राइट्स है? तो देखो जब एवरी कंट्री, ऑल वाली स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं आ जाती है ना. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, दीज स्टेटमेंट्स आर एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स एंड ट्राई टू अवॉइड एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स. सो स्टेटमेंट इज एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज अ बिल ऑफ राइट्स. अब मान लिया कुछ कंट्रीज ऐसी भी हो सकती है जिनका कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, राइट? सो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी कंट्रीज के पास बिल ऑफ राइट्स हो. सो दिस स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट, दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स. First statement, the Constitution guarantees remedy against violation of rights. Now this is regarding Indian Constitution. और आपसे पूछा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी देता है आपको किसके अगेंस्ट? गारंटीज रेमेडी अगेंस्ट वायलेशन ऑफ राइट्स. अगर आपके राइट्स का कोई वायलेशन करता है तो उसके अगेंस्ट ही आपको गारंटी प्रोवाइड करवाता है. So of course we have studied complete Article 32, that was constitutional remedies, है ना? व्हाट वाज दैट? कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट कोई करता है, यू आर हैविंग द राइट टू गो टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली और टू हाई कोर्ट ऑल्सो. आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर टू आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226. आर्टिकल 32 that is related to Supreme Court and 226 that is related to High Court. And Dr. B.R. Ambedkar has considered this particular fundamental right, constitutional remedy, as the heart and soul of Indian Constitution. Why? Because if we are not having surety regarding the attainment of fundamental rights, there is no use of those fundamental rights. And constitutional remedy is the right which is giving us the protection that no one can take over our fundamental rights. Got it? So, hope first question is completely clear to all of you. Now, second question, which of the following is the best description of fundamental rights? अब आपसे पूछा गया फंडामेंटल राइट्स के बारे में कौन सा डिस्क्रिप्शन सबसे करेक्ट है, कौन सा बेस्ट है? ऑल द राइट्स एन इंडिविजुअल शुड हैव. क्या वो सारे राइट्स हैं जो एक इंडिविजुअल के पास होना चाहिए? नाउ recall the explanation when I was explaining the chapter. I have told you कि rights क्या होते हैं? Rights are your rational demands which are accepted by the society and provided by the state. But the same time I told you कि क्या आपकी सारी डिमांड्स को आप राइट्स बोलोगे?
तो सारी डिमांड्स तो राइट्स नहीं हो सकती। इसमें यही बोला गया ना कि और कुछ राइट्स होते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स जिनको गारंटी प्रोवाइड करवाता है कॉन्स्टिट्यूशन, बट यहां पे बोला गया ऑल द राइट्स एन इंडिविजुअल शुड हैव। क्या सारे के सारे राइट्स को आप फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में रख सकते हो? नो, है ना। कुछ आपके स्पेसिफिक राइट्स जो एक कंप्लीट इंडिविजुअल पर्सन के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है उनको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो सारे राइट्स तो इसकी कैटेगरी में नहीं हो सकते। सेकेंड, ऑल द राइट्स गिवन टू सिटीजन्स बाय लॉ, वो सारे के सारे राइट्स जो सिटीजन्स को मिले हैं बाय द लॉ ऑफ दैट कंट्री। सो यहां पर भी एक्सट्रीम सिचुएशन आ गई, एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गई, ऑल द राइट्स, ये भी नहीं हो सकता है। The third, the rights given by the constitution that cannot be restricted, right? Sorry, D statement was this, and C, the rights given and protected by the constitution, ये statement बिल्कुल correct है। क्यों है बिल्कुल करेक्ट? क्योंकि ये वो राइट्स हैं जो आपको प्रोवाइड होते हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री एंड विच आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अब देखो डी स्टेटमेंट, the rights given by the constitution that cannot ever be restricted। यहां पर भी I have told you extreme situation, extreme statement है। इन्होंने बोला है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे राइट्स जो कभी भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो सकते, कभी भी आप उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। बट I have told you in the chapter reading that in normal situation yes this can be correct, but suppose there is an emergency situation, in that situation our fundamental rights can be restricted, right? And in normal situation also there are some kind of restriction over each and every fundamental right, है ना। जैसे right to liberty है, तो अगर आप एक प्लेस पे गैदर हो सकते हो तो there is restriction that you should be armless, right? Suppose आपके regarding है that you can adopt any kind of occupation, but there is also prohibition, there is also restriction that we can't adopt human trafficking। और इन्होंने बोला है कि कभी भी इनको आप रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज प्रोवाइडिंग द करेक्ट एक्सप्लेनेशन? दिस इज द एक्सप्लेनेशन, द राइट्स गिवन एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे राइट्स जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड भी करवाता है, सिर्फ प्रोवाइड ही नहीं करवाता बल्कि उनको प्रोटेक्ट करने की गारंटी भी प्रोवाइड करवाता। होप सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थर्ड, read the following statements, situations which fundamental right is being used or violated in each case and how। आपसे पूछा गया है कौन सा फंडामेंटल राइट है जो यहां यूज हुआ है या फिर वायलेट हुआ है। सो overweight male cabin crew are allowed to get promotion in the national airlines, but their women colleagues who gain weight are penalized। अब देखो यहां पे आपसे क्या बोला गया है, यहां पे आपको बोला गया है कि एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ओवरवेट, अगर किसी ने वेट गेन कर लिया तो ओवरवेट जो मेल कैबिन क्रू है उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट सपोज इफ एनी फीमेल इज देयर एंड शी हैज गॉट द वेट, शी हैज गेन द वेट, बट शी इज पेनलाइज्ड, राइट? मतलब शी इज नॉट अलाउड टू गेट प्रमोशन। सो इज दिस सिचुएशन इज वायलेटिंग एनी काइंड ऑफ राइट और एनी फंडामेंटल राइट इज यूज्ड इन पर्टिकुलर सिचुएशन। So it is clearly visible from the statement only that there is violation of fundamental right on the basis of gender only, right? So in this situation, right to equality is being violated on the ground of discrimination, whereas nobody should be discriminated under the right to equality on behalf of caste, sex, religion, race, etc। यानी कि यहाँ पर वही राइट आपका राइट टू इक्वालिटी एक्सप्लॉइट हुआ है। क्यों एक्सप्लॉइट हुआ है? बिकॉज male members are you can say allowed to get promotion on the same condition, but females are restricted। So this particular statement is showing that in this particular situation there is violation of fundamental right, and that fundamental right is right to equality। Got it? Second is, our director makes a documentary film that criticizes the policy of the government। अब देखो एक डायरेक्टर है जिसने एक मूवी बनाई, डॉक्यूमेंट्री, राइट? और वो क्या करती है, वो मूवी क्रिटिसाइजेस द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रही है। तो क्या इसमें कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है या फिर फंडामेंटल राइट यूज हुआ है? नाउ रिकॉल और रिमेंबर द चैप्टर व्हेन वी हैव स्टडीड इट, एंड वी हैव स्टडीड राइट टू फ्रीडम, and in that sub part
first sub part only we have studied right to freedom of speech and expression, है ना। तो ये अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहा है तो इट मीन्स क्या है, ही इज एबल टू स्पीक अबाउट दोज पॉलिसीज विच आर नॉट करेक्ट. So it means now the person what he is doing in the second situation, the right of freedom of speech and expression is being used. अपने इस पर्टिकुलर राइट का यूज करके वो पर्सन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है. गॉट इट. यहां पर फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट नहीं हुआ, यहां पर फंडामेंटल राइट यूज हुआ है. क्लियर. सी स्टेटमेंट, पीपल डिस्प्लेड बाय अ बिग डैम टेक आउट अ रैली डिमांडिंग रिहैबिलिटेशन. अब क्या हुआ है, ए सिचुएशन इज गिवन टू यू जहां पर कोई एक डैम बन रहा था. डैम्स बेसिकली विच आर कंस्ट्रक्टेड ऑन दी रिवर्स. बट प्रॉब्लम विद द डैम्स कंस्ट्रक्शन इज दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव टू बी डिस्प्लेस्ड. और नाउ द पीपल व्हाट दे आर डूइंग, पीपल डिस्प्लेड बाय आवर बिग डैम, ऐसे लोग जो उससे डिस्प्लेस हुए हैं, दे आर टेकिंग आउट अ रैली फॉर व्हाट, दे आर डिमांडिंग फॉर रिहैबिलिटेशन. रिहैबिलिटेशन. तो अब क्या ऐसा इसमें कोई फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट हुआ है? अगर कोई फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट हुआ है या लोग किस अपने फंडामेंटल राइट का यूज कर रहे हैं? अब देखो, पीपल डिस्प्लेस्ड बाय द बिग डैम टेक आउट अ रैली डिमांडिंग द rehabilitation through our constitution grants right to reside and settle in any part of India in the right to freedom. अब देखो वो क्यों एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपनी आइडियाज को, क्यों रैली निकाल पा रहे हैं? बिकॉज दिस इज राइट टू फ्रीडम एंड द गवर्नमेंट हैज डिस्प्लेस्ड देम जस्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, है ना। तो अब अगर वो पर्सन कोई एक ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर यूजिंग देयर फंडामेंटल राइट. एंड विच ऑफ द फंडामेंटल राइट दे आर यूजिंग? दे आर यूजिंग राइट टू फ्रीडम. व्हाई? Because it provides them right to settle down in any part of the India, right? But people have right to freedom of speech and expression also. In this case, the government can impose some restriction to maintain law and order. अब देखो, हालांकि क्या हो सकता है कि ये जो सिचुएशन है, लोग अपने फंडामेंटल राइट्स का ही यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, that they are protesting against any kind of scheme, any kind of constructional work because of the लॉस ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट. बट यहां पर क्या हो सकता है, यहां पे एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि व्हेन द पीपल आर प्रोटेस्टिंग, सो एनी काइंड ऑफ वॉयलेंटिक एस्पेक्ट कैन टेक प्लेस हियर. हो सकता है कि कोई भी वॉयलेंटिक एस्पेक्ट यहां पर प्लेस ले सकता है. That's why what should be done? That's why the government can impose some kind of restriction. We have studied na, any of the fundamental right is not absolute. कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है. तो अगर फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है तो अब क्या होगा, गवर्नमेंट कैन इम्पोज सम काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ताकि सोसाइटी का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे. गॉट इट. मतलब लोग अपने फंडामेंटल राइट का यूज कर रहे हैं, बट इवन देन देयर कैन बी सम काइंड ऑफ पॉजिटिव रेस्ट्रिक्शन ओवर दैट. After that, D statement, Andhra society runs Telugu medium schools outside Andhra Pradesh. अब आंध्रा सोसाइटी है, वो क्या कर रही है, वो तेलुगु मीडियम स्कूल्स चला रही है. और वो स्कूल्स कहां है? आउटसाइड आंध्र प्रदेश. मतलब दे आर नॉट इन आंध्रा, दे आर आउटसाइड द आंध्र प्रदेश. So you will have to tell if they are using their fundamental right or they are violating the fundamental rights of other. So this statement, this particular D statement, this case refers to the rights of linguistic minorities to set up their own educational institutions to preserve their culture. अब देखो, जब हमने चैप्टर स्टडी किया था कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, वी हैव स्टडीड इट इज रिलेटेड विद आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें बेसिकली क्या आपको राइट प्रोवाइड है, सपोज एनी पर्सन इज माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज स्पेशली, दे कैन ओपन देयर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, राइट? दे कैन सेट अप देयर एजुकेशन इंस्टीट्यूट and they can not only open it but they can preserve it also. Okay, so hence Andhra Pradesh can enjoy the right to run Telugu medium schools outside Andhra Pradesh. It means what is used in this situation, fundamental rights are used in this particular situation, rights are not violated. Got it? Hope it is also clear to all of you. Now we are on question number 4.
Which of the following is a correct interpretation of the cultural and educational rights? The same right which we have studied in D statement. And it is asked from you, which of the following statement is a correct interpretation of this particular right? अब देखो क्या है, only children belonging to the minority group that has opened education institute can study here. अब देखो again only, जहां पर भी अब इस चीज को बड़े ध्यान में आपको रखना है, only statement, all statement, फिर वही एक्सट्रीम वाली स्टेटमेंट्स होती हैं. सो इसमें बोला गया कि सिर्फ बच्चे, ओनली चिल्ड्रन जो बिलोंग करते किसी पर्टिकुलर माइनॉरिटी ग्रुप से, दैट हैज ओपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन स्टडी हियर. यानी कि अगर आपने कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप कर दिया, सो इन दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ओनली चिल्ड्रन विच आर बिलोंगिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर माइनॉरिटी ग्रुप दे विल बी स्टडिंग हियर. सो क्या ये ऐसी एक्सप्लेनेशन आपने पढ़ी थी कहीं भी चैप्टर में? नो. Second statement, government schools must ensure the children of the minority group will be introduced to their belief and culture. अब क्या होगा कि ऐसा होगा कि जितने भी आपके गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे ना, उसमें ये इंश्योर करेगी गवर्नमेंट या फिर वो स्कूल इंश्योर करेंगे दैट चिल्ड्रन ऑफ द माइनॉरिटी ग्रुप विल बी इंट्रोड्यूस्ड, कि माइनॉरिटी ग्रुप्स के ना जितने भी कल्चर होंगे, बिलीफ्स, इनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे. दैट इज नॉट पॉसिबल इन गवर्नमेंट स्कूल्स. Why is it not possible? Because the government schools, they are working for whole of the country, है ना? This work will be done by those educational institutions which are set up to preserve the culture and belief of any particular linguistic minorities. ये वहां पर होगा ये वर्क. गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसा वर्क नहीं करेंगे because they are working for whole of the nation. अगर वो किसी एक पर्टिकुलर एक लैंग्वेज को, पर्टिकुलर कल्चर को वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे, सो इट विल बी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ऑल, राइट? सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट. सी, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज कैन ओपन स्कूल्स फॉर देयर चिल्ड्रन एंड कीप इट रिजर्व फॉर देम. अब ये आपसे बोला गया है कि लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज अपने स्कूल ओपन कर सकते हैं और इसको रिजर्व भी कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए. ये स्टेटमेंट सही है, राइट? Let us discuss D also. Linguistic and religious minority can demand that their children must not study in any education institute except those managed by their own community. ऐसा भी हमने कहीं नहीं पढ़ा कि जो माइनॉरिटीज वाले मेंबर्स होंगे, माइनॉरिटी ग्रुप के मेंबर्स होंगे, वो डिमांड कर सकते हैं कि उनके बच्चे सिर्फ उन्हीं एजुकेशन इंस्टीट्यूट में स्टडी करेंगे जो उन्हीं की कम्युनिटी से बनाए हैं, और उनके अलावा वो किसी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन गेन नहीं कर सकते. So this kind of statements we have never discussed in the chapter. This is completely incorrect. So C statement is correct. The statement of the above option is correct interpretation because Article 29 protects the interest of the minorities in India to preserve their own language, script and culture. यानी कि ये वाली statement कि अब वो क्या करेंगे? They can open their school for their children. And we have given this right to minority people that they can preserve their own language, script and culture also. And Article 30, it provides that all minorities shall have the right to establish and administer education institution of their choice. और Article 30 क्या बोलता है कि जितने भी minorities हैं उनके पास right है एडमिनिस्ट्रेशन करने का भी और एस्टैब्लिश करने का भी अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस ओनली. Hope this is also completely clear to all of you. Now, question number 5. Which of the following is a violation of fundamental rights and why? कौन सा इसमें से फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है और क्यों है? अब देखो, नॉट पेइंग मिनिमम वेजेस. अब याद करो आर्टिकल 23 और 24 दैट वाज रिलेटेड टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. अब इसमें हमने क्या पढ़ा था कि आप किसी पर्सन से ना तो फोर्सफुली वर्क करा सकते हो और ना ही वर्क विदाउट पेमेंट करा सकते हो. गॉट इट? सो ये बिल्कुल सही बात है ना? ये वायलेशन होगा अगर किसी आपको फंडामेंटल राइट्स, अगर आप किसी पर्सन को अब वो बेसिस प्रोवाइड नहीं करवा रहे हो जस्ट के मिनिमम वेजेस हैं. एंड recall the story also that we have studied that was related to the constructional work and a lot of instead of engineers local workers were used in that particular constructional work and they were paid less, है ना? और उसमें आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था कि क्या राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है? अगर रिच पीपल होते, एजुकेटेड पीपल होते तो क्या ऐसा सिस्टम होता फिर भी, राइट? आई थिंक यू आर एबल टू कनेक्ट इट नाउ. सेकंड, बैनिंग ऑफ अ बुक.
अब देखो ये फंडामेंटल राइट्स का ना वायलेशन नहीं, इसको आप इसकी कैटेगरी में नहीं रखोगे। सपोज आपने कोई ऐसी बुक लिखी जो नेशनल इंटीग्रिटी को, सॉवरेनिटी को डैमेज करती है, तो उस बुक को बैन किया जा सकता है। गॉट इट? हमने क्या पढ़ा था? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दैट इफ योर वर्ड्स are putting negative impact, if they are creating danger for the national integrity, unity, sovereignty, then that particular right can be restricted. Or freedom of speech and expression is also related to write your ideas as well. So if anyone has written that kind of book which is putting negative impact on the society, on the nation integrity, sovereignty, so that book can be banned. बैनिंग ऑफ लाउड स्पीकर आफ्टर 9 PM, ये बिल्कुल सही है, ये तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है ही नहीं, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद क्यों हमने ऐसा किया? बिकॉज अदर पीपल आर ऑल्सो हैविंग फंडामेंटल राइट्स। अगर एक पर्सन ने लाउड स्पीकर बड़ी तेज तेज आवाज में चला दिया तो उसे दूसरे के फंडामेंटल राइट्स तो एक्सप्लॉइट होंगे ना। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। एंड मेकिंग अ स्पीच, अब ये मेकिंग अ स्पीच, अगर आप स्पीच दे रहे हो, तो अगर आप स्पीच दे रहे हो तो स्पीच दे रहे हो दैट यू आर यूजिंग फंडामेंटल राइट, है ना, तो इसमें तो वायलेशन हुआ ही नहीं। सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द क्वेश्चन विल बी ए ऑप्शन, दैट नॉट पेइंग मिनिमम वेजेस इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर आप किसी से वर्क करवा रहे हो और उसको मिनिमम वेजेस भी नहीं दे रहे हो, which are ensured by the government or which are, you can say, set up by the government, so this is a violation of fundamental rights. And why? Because this act comes under right against exploitation. और ये आपका पर्टिकुलर एक्ट कहां आता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, दैट इज अ फंडामेंटल राइट, एंड कॉन्स्टिट्यूशन guarantees to protect it. Got it? And what is mentioned in that right? Begar, forced labor, bounded labor or not paying minimum wages come under the right against exploitation. यानी आप किसी से बेगार करवा रहे हो, फोर्स लेबर करा रहे हो, उसके अलावा किसी से मिनिमम वेजेस दिए बिना वर्क करवा रहे हो, ये सारे के सारी कैटेगरीज किसके अंडर आती है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इट हैज नाउ बीन डिक्लेयर्ड अ क्राइम एंड अ पनिशेबल ऑफेंस ऑल्सो। अगर आज के टाइम पे किसी, पहले देखो क्या होता था, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती थी, तो यस दिस थिंग्स वर हैपनिंग, बट नाउ इन प्रेजेंट टाइम, बिकॉज वी आर इंडिपेंडेंट नाउ, so these all things are considered as a crime and these are a punishable offense also. मतलब इनके लिए डायरेक्टली पनिशमेंट भी मिलेगी। Hope till here everything is completely clear to all of you. If you are having any kind of doubt and query, feel free to ask your question in comment section. Next half of the portion of the exercise we will do in next video. Till then, keep learning, stay connected. Thank you. Thanks a lot.